Okay, again, good morning again. So let's start with the things. Today we will continue with NetBeans. Yesterday we discussed about different controls and their properties and methods, and some of the properties and methods we have covered up. So we'll continue with the next thing. Next we have some more controls. So I'll just move on to the screen. So today we will talk about text fields. So in text fields, properties and all are same. Like background property is there, which with the help of which people can change the color of the background. Then we have foreground, where from where we can change the color of the text written on the text fields. And likewise, text property is there, in which you can write the text that you want to show on that particular text field. फॉन्ट प्रॉपर्टी से हम लोग टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं. कैन चेंज द फॉन्ट साइज, कैन चेंज द फॉन्ट type also, and make the things bold, italics in the line. Then there's an enabled property. This is the same that we have done in button and labels also. So enabled property, if it is true, that means your control is active. And if enabled property is false, then at runtime the control is inactive and it will not be working. One more property is there, which is editable property. Editable property, if this editable property is true, then at runtime we can change the text present in the text field. And if it is false, then your text field will work similar as labels. तो रन टाइम पे आप उसमें जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको चेंज नहीं कर सकते if the value assigned to this property editable is false, right? So editable property में अगर false है तो रन टाइम पे टेक्स्ट के अंदर जो भी वैल्यू है वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स हो जाएगी जैसे लेबल्स में होती है. फाइन. Then we have some methods associated. Set text get text is the same method. Is editable, is enabled. So editable is editable and set editable. These two messages are new. Is enabled or set enabled वही है जो हमने पीछे किए थे. Is enabled will check whether the enabled property is set to true or false. If it is true, it will return a value in true. If it is false, the value returned is false. As you can see, text field 1 dot is enabled. ये चेक करेगा कि इस text field में आपने enable property में क्या किया है. अगर true है तो b की वैल्यू true हो जाएगी, अगर वो false किया था तो b की वैल्यू false हो जाएगी, right? ऐसे ही editable is editable will check whether you have applied true in editable property or false in editable property. अगर editable property में आपने true किया है तो b की वैल्यू true हो जाएगी, otherwise false हो जाएगी, right? तो that's the use of is editable and is enabled. अगर आपको खुद चेंजेस करनी है रन टाइम पे, उसके लिए आप set editable और set enable मेथड यूज कर सकते हैं. इट्स नॉट रिटन हियर, so you can do that, set editable and set enable. if you write set editable true, if you उसके लिए हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है. simply write name of the text field dot set editable ब्रैकेट में true या false. ट्रू किया तो एडिटेबल प्रॉपर्टी ट्रू हो जाएगी, मतलब रन टाइम पे आप चेंजेस कर सकते हो. और अगर फॉल्स किया तो एडिटेबल प्रॉपर्टी फॉल्स हो जाएगी, मतलब रन टाइम पे उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर चेंजेस नहीं हो सकती, राइट? ऐसे ही फॉर एनेबल्ड आल्सो यू कैन यूज सेट एनेबल्ड मेथड, और उसके लिए विल राइट दिस मच ओनली. ये बूलियन बी की जरूरत नहीं है. टेक्स्ट फील्ड का नाम डॉट सेट एनेबल्ड ट्रू या सेट एनेबल्ड ब्रैकेट में फॉल्स. ट्रू लिखा तो एनेबल प्रॉपर्टी ट्रू हो गई, मतलब योर कंट्रोल इज एक्टिव एट रन टाइम. और अगर हम फॉल्स कर दे तो कंट्रोल इज इनएक्टिव एट रन टाइम. फाइन.
So these are the functions that we can, or functions or methods. Functions method एक ही बात होती है, methods बोल रहे हैं, functions बोल रहे हैं. So these are the methods which we can use there, right? Text interaction using text fields. Now देखो text field में जब हम कुछ भी print करते हैं तो या कुछ read करते हैं, how do we do this? Java uses three kind of methods. Get text हमने किया था. This returns the text stored in the text-based GUI like text fields, text area button, radio button, checkbox, and all in string type. तो मतलब क्या कर रहा है ये get text method will read the data present in that control. जैसे text field है तो text field के अंदर जो कुछ भी टाइप किया गया है उस वैल्यू को रीड किया जाएगा. किस टाइप में? स्ट्रिंग टाइप में, अल्फाबेट फॉर्म में, and that is stored to a variable using equal to symbol, right? So this line reads the value from this text field, and whatever value is written over there, that will be assigned to a string name str. एक वेरिएबल है string str1 और उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, मतलब उसके अंदर अल्फाबेट्स का ग्रुप आ सकता है. So whatever name is written, whatever value is written in this text field will come to this. This is how we read the value, right? फिर ये हमने parsing किया था. Parse method is important because you see text field as the name indicates. Text का मतलब क्या होता है? Alphabets, letters, right? So whenever some value is entered into the text field, it is considered that that value is a text value. अगर हम टेक्स्ट फील्ड में नंबर भी डाल रहे हैं तो वो नंबर भी कंसिडर किया जाता है टेक्स्ट फॉर्म, राइट? सो फॉर यूजिंग दैट नंबर इन कैलकुलेशंस वी नीड टू कन्वर्ट दैट थिंग इनटू एग्जैक्ट नंबर फॉर्म, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड में टेक्स्ट की फॉर्म में वो कंसिडर किया जाएगा. उस टेक्स्ट को हमें इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम उसको यूज कर सकें, ठीक है? तो जैसे हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स किए थे पीछे, लाइक एंटर अ नंबर, वो नंबर इनपुट किया, उस नंबर को बाद में हमने सम करना है दूसरे नंबर के साथ, या प्रोडक्ट करना है या डिवाइड करना है, तो वो नंबर तभी डिवाइड होगा अगर वो नंबर फॉर्म में हो, राइट? और यहाँ पे हमारा नंबर फॉर्म नहीं होता जब हम टेक्स्ट फील्ड में कुछ एंट्री करते हैं, बिकॉज बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फील्ड में whatever number or value is entered, that value is considered as text only, means it is considered as alphabet only, right? So we need to convert that into numeric type. And how do we convert into numeric type? Using this parse method. और जो भी टाइप में कन्वर्ट करने, if you want to convert into byte data type, तो write byte dot parse bit और ब्रैकेट में उस टेक्स्ट फॉर्म को, उस स्ट्रिंग को लिख लो, या फिर ब्रैकेट में लाइक ये हमने str1 बनाया था, ये ब्रैकेट में str1 लिख दो, या फिर ये चीजें उठा के आप यहीं लिख दो, राइट? byte dot parse byte ब्रैकेट में ये टेक्स्ट फील्ड 1 dot get text, ठीक है? तो यहाँ दो लाइंस में लिख लो, एक ही लाइन में भी कर सकते हैं, right? So short dot parse short will convert into short data type. Integer dot parse int will convert that into integer form, and long dot parse long will convert that into long data type. ये चार तरह के data types हमने किए थे. ये all these four are for numbers without decimals. ये छोटे numbers के लिए, उससे बड़े, integer उससे बड़ा, long सबसे बड़ा range का number आप use कर सकते हैं. And float and double are used for decimal numbers, right? The numbers having decimal values. So float dot parse float and double dot parse double can also be used. This is how we convert that string value into a number form so that it can be used in calculations, right? So this is how we write. You can see this. J text will 1 dot get text read करेगा और parse int उसको integer में convert करेगा और एक variable age को assign कर देगा, right? Then we have a third thing is setText method. setText is to store the value into a component, or you can simple terms you can say if we want to print a value there on the control on the component, तो वो कैसे करना है? इसके दो तरीके हैं. One is this, one is this.
फर्स्ट वन यू कैन सी इसमें लिखा है जेटेक्स विल वन डॉट सेट टेक्स्ट ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कुछ भी कैरेक्टर अल्फाबेट या वैल्यू जैसे अमिताभ लिख दिया तो ये क्या करेगा, इस वैल्यू को अमिताभ को इस टेक्स्ट फील्ड वन में प्रिंट कर देगा, राइट। नाउ दिस वैल्यू इज रिटन इन इन्वर्टेड कॉमर्स, so whatever you want to print it has to be written in inverted comma if you want to print it exactly as it is given, जैसा यहाँ दिया है ऐसा ही प्रिंट करना है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखो, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में वो स्ट्रिंग का काउंट होगा तो स्ट्रिंग को वो डायरेक्टली एज इट इज प्रिंट करता है। बट इन केस यू वांट टू प्रिंट अ न्यूमेरिक वैल्यू तो हम क्या करते हैं, हम उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिस वेरिएबल की वैल्यू हमने प्रिंट करनी है। लाइक यहाँ पे हमने str1 लिया था, सो इफ यू वांट टू प्रिंट दिस वैल्यू तो विल राइट j label या jtextfield1 डॉट settext इन्वर्टेड कॉमा प्लस str1, this is the name of the variable which you want to print, या प्लस x या प्लस y whatever you want to print, तो उस वेरिएबल का नाम यहाँ लिखना है। और ये क्यों किया, इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगाया, रीजन वही है क्योंकि पेमेंट इज ए वेरिएबल विच कैन होल्ड अ न्यूमेरिक वैल्यू, number value, and numbers cannot be written directly into a text field, so we need to convert back the things into string form, ठीक है। जैसे हम पार्स में उल्टा कर रहे थे, स्ट्रिंग से इंटीजर बना रहे थे, यहाँ पे इंटीजर को स्ट्रिंग में बनाना है, उल्टा करना है ताकि वो स्ट्रिंग फॉर्म में काउंट हो या टेक्स्ट फॉर्म में काउंट हो। तो अगर आपके पास नंबर भी है किसी वेरिएबल में तो we have to write inverted comma, this indicates that we are adding up a string value there, right? So this will print the value of payment into the label 1, fine। अब इस लाइन को हम एक और तरीके से नीचे वाली लाइन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, alternate way of writing, JLabel1 dot set text ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बजाय इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग लिख के ब्रैकेट में पेमेंट कर दो। दिस इज आल्सो सेम, इट विल कन्वर्ट दैट इंटीजर इनटू स्ट्रिंग फॉर्म, टू स्ट्रिंग मेथड विल कन्वर्ट दैट इंटीजर इनटू स्ट्रिंग एंड देन दैट स्ट्रिंग विल बी कैन बी प्रिंटेड देयर इन द लेबल, बिकॉज लेबल और टेक्स्ट फील्ड में स्ट्रिंग्स जाते हैं, नंबर्स डायरेक्टली प्रिंटिंग होते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम एरिया है, यू कैन से दैट when you want to read something, even then you have to convert it into decimals or into number form, numeric form, और अगर number को print करना है तो then you have to convert that into string form again, right? So one way of converting into string is inverted comma plus, another way is integer dot to string, दोनों में से जो easy लगता है आप कर सकते हैं, fine। Next is about check boxes control। अब जो GUI फॉर्म्स आते हैं इनमें सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो कंट्रोल हैं, एक तो टेक्स्ट फील्ड होता है नो डाउट टू एंटर अ वैल्यू, देन फॉर एडिंग अप सर्टेन कंडीशंस, जैसे मान लो आपने कंडीशन देनी है कि कैटेगरी आपने एक फील्ड बना दी, उस कैटेगरी के नीचे हमने चेक बॉक्सेस लगा दिए, एक जनरल कैटेगरी है, एक SC कैटेगरी है, एक ST कैटेगरी है, एक OBC कैटेगरी है, लाइकवाइज आपने कैटेगरी हर कैटेगरीज के लिए एक चेक बॉक्स लगा दिया। अब अगर हम क्वेश्चन में हमने उस फ्रेम के अंदर वी वांट टू डिजाइन दैट कि भाई ये जो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फी स्ट्रक्चर है एंड इन द सॉफ्टवेयर वी वांट टू कैलकुलेट दैट फी बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया, उस केस में हमें चेक बॉक्सेस लगाने पड़ेंगे और चेक बॉक्सेस के साथ वी हैव टू एसोसिएट देम विद द कोडिंग आल्सो। तो ये कोडिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है चेक बॉक्सेस का, बिकॉज चेक बॉक्सिंग से आप कंडीशंस वगैरह दे सकते हो, अगर पहले वाला चेक बॉक्स सिलेक्ट किया है तो ये करो, सेकंड किया तो ये करो, ऐसी कंडीशंस हम लोग डाल सकते हैं। तो ये जिससे इससे आपका जो फॉर्म बनेगा बड़ा इंटरेक्टिव फॉर्म बन जाता है, राइट।
So checkboxes are belongs to J checkbox class of the swing control. ये J checkbox class को belong करता है. Class एक group of objects होता है और ये इसके बारे में we'll discuss later on. And it indicates whether a particular condition is on or off, true or false, or yes or no option can be used. So user can accept the choice or it cannot, right? And all checkboxes, they work independently to each other, means you can have number of checkboxes and you can have multiple selections there. It can be used to input true or false. अगर आपको true false में कहीं आंसर लेना है यूजर से, yes no में आंसर लेना है, तो instead of typing you can put checkboxes and then user just have to select any one of the option, right? And multiple checkboxes can be selected at the same time. This is the most important part of checkbox. कि आप एक टाइम पे एक से ज्यादा checkboxes को इकट्ठा select कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद आते हैं रेडियो बटन. रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस में एक ही डिफरेंस है कि रेडियो बटन्स में यू कैन सेलेक्ट ओनली वन वैल्यू आउट ऑफ नंबर ऑफ रेडियो बटन्स गिवन, राइट? और चेक बॉक्सेस में यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल, कैन सेलेक्ट मेनी, राइट? इफ यू कैन सी दिस, दीज आर चेक बॉक्सेस. प्रॉपर्टीज डू यू हैव, हाउस, कार, कैश, प्लॉट, इनमें से जितनी मर्जी आप सिलेक्शन कर सकते हो. कार, प्लॉट, हाउस, चारों पे टिक कर दो, चारों सेलेक्ट हो जाएंगी. ये ऊपर जेंडर वाला कॉलम है, ये रेडियो बटन है. या मेल पे सेलेक्ट होगा या फीमेल पे. अगर आप फीमेल पे क्लिक करते हो तो मेल सेलेक्ट नहीं हो सकता, मेल पे करते हो तो फीमेल सेलेक्ट नहीं हो सकता, एक चीज सेलेक्ट होगी. तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस यही है कि यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन, यहाँ पे सिंगल सिलेक्शन, राइट? Now talking about the properties of checkboxes and methods related to it. चेक बॉक्सेस के मेथड्स सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम के. चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन दोनों के, ठीक है? इनके मेथड भी सेम है, इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है, कुछ एक का डिफरेंस है. अब बैकग्राउंड प्रॉपर्टी सेम है, कलर बैकग्राउंड का चेंज करना है. फोरग्राउंड टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट रिटन ऑन द चेक बॉक्स. टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग जैसे बटन का नाम देना था, लेबल का नाम, वैसे ही इसमें भी चेक बॉक्स का कोई, if you want to type the text which you want to show there on the checkbox, checkbox के आगे क्या लिखा आएगा वो हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखते हैं. लेबल कोई हेडिंग देना है, राइट? पिक्चर भी लगाई जा सकती है. फॉन्ट is to change the font size. enable प्रॉपर्टी वही है, ट्रू फॉल्स. enable ट्रू है तो आपका चेकबॉक्स एक्टिव होगा, वो will run. अगर enable फॉल्स है तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, it will not work. निमोनिक्स प्रॉपर्टी वही है आपका, जैसे बटन में हमने किया था कि हम कीबोर्ड शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं. ऑल्ट की दबा के आप कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे सेट करो इस प्रॉपर्टी में, तो उस कैरेक्टर से आपका कीबोर्ड शॉर्टकट बन जाएगा उस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए, राइट? एक ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो डिफरेंट है, बाकी सब तो पहले भी है. ये भी सिलेक्टेड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर सिलेक्टेड प्रॉपर्टी पे हमने ट्रू सेट किया है तो रन टाइम पे वो जो पर्टिकुलर चेक बॉक्स है वो उस पर टिक लगा देगा, मतलब वो सिलेक्टेड है, ठीक है? और डिफॉल्ट फॉल्स होता है और प्रॉपर्टी में जाके आपको ट्रू करना पड़ेगा. तो डिफॉल्ट इट इज फॉल्स एंड इफ इट इज फॉल्स देन एट रन टाइम दैट चेक बॉक्स इज नॉट सिलेक्टेड, वो ब्लैंक होगा. जैसे ये पीछे हमने फ्रेम में देखा था, ये जो है ये ब्लैंक है. अगर आप ट्रू कर दोगे तो यहाँ पे टिक आ जाएगा, मतलब ये वाली पोर्शन, ये वाला जो चेक बॉक्स है वो सिलेक्टेड है, ठीक है? हर चेक बॉक्स, ये 4 चेक बॉक्सेस हैं, चारों के लिए अलग अलग आपको वो लगाने पड़ेंगे. 4 अलग अलग वो हैं, सबकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हैं. तो इफ यू वांट टू सेलेक्ट दिस, सो सेलेक्टेड प्रॉपर्टी में ट्रू कर दो, यहाँ पे टिक आ गया. इसकी भी सिलेक्टेड प्रॉपर्टी में ट्रू कर दो, यहाँ पे भी टिक आ जाएगा. तो लाइकवाइज सिलेक्टेड प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड, राइट? लास्ट वन इज बटन ग्रुप प्रॉपर्टी. अब ये जो बटन ग्रुप प्रॉपर्टी है ये बेसिकली रेडियो बटन्स के लिए है, चेक बॉक्सेस के लिए नहीं है. वो इसलिए
क्योंकि रेडियो बटन्स में हमने अभी बात करी कि रेडियो बटन्स में सिंगल सिलेक्शन है, आप एक टाइम पे मल्टीपल रेडियो बटन्स में से एक रेडियो बटन ही सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जबकि चेक बॉक्सेस में मल्टीपल सिलेक्शन होती है। बट वी हैव एन ऑप्शन हेयर इन चेक बॉक्सेस ऑल्सो। अगर आप चाहते हो कि चेक बॉक्सेस में भी रेडियो बटन की तरह सिंगल सिलेक्शन ही हो, फॉर दैट वी कैन ऐड अ बटन ग्रुप यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। जब आप बटन ग्रुप चेंज कर लोगे, ऐड कर लोगे, बटन ग्रुप ऐड करने से हम बटन ग्रुप प्रॉपर्टी में जाके किसी एक बटन के साथ इसको क्लब किया जा सकता है, ग्रुप बन जाता है, मतलब अलग अलग बटन्स का, मतलब अलग अलग चेक बॉक्सेस का ग्रुपिंग जब हो जाती है तब सिंगल सिलेक्शन होती है। कि मान लो दो चेक बॉक्सेस थे, हमने दोनों के बटन ग्रुप में प्रॉपर्टी में जाके एक बटन ग्रुप का नाम सेलेक्ट कर लिया, दोनों में कॉमन नाम सेलेक्ट कर लिया, तो फिर दोनों जो चेक बॉक्सेस हैं वो अब सिंगल सिलेक्शन वाले हो जाएंगे, मतलब चेक बॉक्स भी रेडियो बटन की तरह बन जाएगा, राइट। सो वी कैन हैव सिंगल सिलेक्शन इन दैट केस ऑल्सो। ऑप्शन इज देयर, बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होता, चेक बॉक्सेस में हम लोग ये नहीं लगाते हैं, but there is an option in which you can create a checkbox. Also, we can convert a checkbox into radio buttons also. We cannot convert because the property we can apply कि भाई सिंगल सिलेक्शन चेकबॉक्स में ही चाहिए आपको, तो वो भी कर सकते हैं हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है। ऑल्दो ये प्रॉपर्टी हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं रेडियो बटन्स में, कि वहाँ पे हम हर बार सिंगल सिलेक्शन का ऑप्शन ही देते हैं। Now we'll talk about the methods which are used in checkbox. ये methods ही इसके सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, checkbox और रेडियो बटन के methods, और ये कॉमन है, दोनों में सेम होता है, दोनों की प्रॉपर्टीज भी सेम है और checkbox ये मेथड भी सेम है। get text method तो हमें पता है, get text and set text is used to print. If you want to print something on the checkbox, let's say checkbox 1, you'll write checkbox 1 dot set text and then with the value you want to print there. Fine. Then getText will read the value from the control and then that value can be given to a string type variable. Set enabled हमने पीछे किया था, set enabled, अगर set enabled आप true करते हो, जैसे एक एग्जांपल में है checkbox dot set enabled true, तो रन टाइम पे आपका ये चेक कंट्रोल जो है ये वर्क करेगा, और अगर हमने ये फॉल्स कर दिया तो रन टाइम पे ये चेक बॉक्स इनएक्टिव हो जाएगा, इट विल नॉट बी वर्किंग। आपका ये कंट्रोल दिखेगा जरूर बट इनएक्टिव हो जाएगा, जैसे हमने कल बटन के साथ किया था, राइट। ऐसे ही इज enabled will check whether this enabled property is true or not, राइट। तो ये इज enabled लिखा हमने चेक बॉक्स के साथ, ये चेक करेगा कि क्या उसमें ट्रू है, अगर ट्रू है उस enabled प्रॉपर्टी में तो st की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, नहीं तो फॉल्स हो जाएगी, राइट। ये जो दो हैं, इज सेलेक्टेड सेट सेलेक्टेड, सबसे ज्यादा ये दोनों पूछे जाते हैं। इज सेलेक्टेड हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं टू चेक वेदर दैट पर्टिकुलर चेक बॉक्स इज सेलेक्टेड और नॉट। मतलब देखो, मैं जो अभी बात कर रहा था शुरू में कि हम लोग कंडीशंस डाल सकते हैं, हमने मान लो 3 चेक बॉक्सेस लगा दिए, एक जनरल कैटेगरी के लिए, एक SC ST के लिए, एक अदर कैटेगरी के लिए, तीनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, मान लो फॉर एग्जांपल, लेट मी टेकिंग वन एग्जांपल, राइट, कि तीनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, ठीक है, जनरल का 10%, दूसरे का SC ST का 5% और अदर्स का 4% मान लो, राइट। सो if you want to calculate anything based on the selection done by the user, अगर मान लो यूजर ने जनरल वाले चेक बॉक्स को सिलेक्ट किया, तब क्या करेंगे, तब हम 10% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लो यूजर ने SC ST वाला चेक बॉक्स टिक किया, तब हम क्या करेंगे, तब हम 5% के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। और अगर मान लो OBC वाला सिलेक्टेड है, then what we are going to do, then we are going to go with 3-4%, whatever it is given, जो प्रोग्राम के हिसाब से बना है उस हिसाब से कैलकुलेशन होगी।
अब हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ क्या आता है कि हाउ विल यू चेक कि कौन सा वाला चेक बॉक्स सिलेक्टेड है, ठीक है। दैट कैन बी checked with the help of this method is selected. If you write the name of the checkbox dot is selected, इसका मतलब वो चेक करेगा क्या यहाँ पे वैल्यू ट्रू है। वैल्यू ट्रू है मतलब उसको सिलेक्ट किया गया है। अगर वो सिलेक्टेड है तो क्या करना है, तो इसको हमने इफ कंडीशन दे दी, इफ दिस इज सिलेक्टेड देन ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ कैलकुलेशन की स्टेटमेंट डालो, 10% के हिसाब से कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है। वी कैन पुट अ वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 10/100, राइट। सिमिलरली इफ सेकंड चेक बॉक्स इज सिलेक्टेड देन उसके लिए क्या लिखेंगे, इफ जो भी सेकंड चेक बॉक्स का नाम मान लो चेक बॉक्स 2 है, जे चेक बॉक्स 2 डॉट इज सिलेक्टेड, देन उसके लिए फिर से कर्ली ब्रैकेट और देन डू द कैलकुलेशन। So the is selected method is the most commonly used method used in GUI, right? तो इस सिलेक्शन से हमने क्या करना है, मैं दोबारा बताता हूँ। ये क्या करता है, ये चेक करता है कि ये जो पर्टिकुलर चेकबॉक्स का नाम लिखा है इसको यूजर ने सेलेक्ट किया है कि नहीं किया है। अगर वो किया है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो कंडीशन ट्रू होने पे ये स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हो जाएंगी जो भी इस ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। वो हम सेट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राइट। और सेट सेलेक्टेड जैसे मैंने पहले भी बताया, इस सेलेक्टेड का काम है चेकिंग करना है, सेट सेलेक्टेड का काम है अप्लाई करना। तो अगर हम चेक बॉक्स का नाम लिख के आगे लिखते हैं सेट सेलेक्टेड ट्रू, तो क्या होगा, वो चेक बॉक्स रन टाइम पे सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि उसके आगे जो बॉक्स बना उसमें टिक आ जाएगा, वो सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन करना है रन टाइम पे फोर्सफुली या हटाना है, उसके लिए हम यहाँ पे सेट सेलेक्टेड ट्रू या सेट सेलेक्टेड फॉल्स लिखते हैं, ठीक है। कई बार होता है कि एक जीयूआई फॉर्म बना है उसमें हमने क्लियर बटन लगा दिया। क्लियर बटन पे जैसे क्लिक करें, जहां कहीं भी सिलेक्शन की गई है किसी चेक बॉक्स में या रेडियो बटन में, उसको हटा दिया जाए। तो वो कैसे हटेगा, उसके लिए हमने उन चेक बॉक्स के नाम लिखने होंगे और सेट सिलेक्टेड फॉल्स करना पड़ेगा। सेट सिलेक्टेड फॉल्स किया तो अगर उसको किसी ने यूजर ने सिलेक्ट किया भी है, टिक उसको पे लगा भी है, तो वो हट जाएगा। क्लियर बटन का काम वहां से हो सकता है। क्लियर बटन पे भी एक आध क्वेश्चन जरूर आता है, फाइन। तो ये जो दो मेथड्स हैं ये सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, राइट। प्रैक्टिकल पार्ट में इनका यूज सबसे ज्यादा है। हमारे जितने भी क्वेश्चन जो प्रोजेक्ट्स बनेंगे ना उसमें सेट सेलेक्टेड इज सेलेक्टेड सबसे ज्यादा इज सेलेक्टेड का यूजेज आएगा और उसके बाद सेट सेलेक्टेड का भी आएगा। एनेबल्ड प्रॉपर्टी या फिर विजिबल प्रॉपर्टी, ये सब जो है, या एडिटेबल प्रॉपर्टीज, ये तीन तरह के जो प्रॉपर्टीज हैं इनके रिलेटेड मेथड हैं, उनकी यूजेज में वो कम है इनके बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, राइट। तो दैट्स ऑल अबाउट चेक बॉक्सेस। इफ यू टॉक अबाउट रेडियो बटन मैंने बताया इसमें सिंगल सिलेक्शन होती है और ऑल दी प्रॉपर्टीज आर सेम, देयर इज नो चेंज, राइट। और ये बटन ग्रुप प्रॉपर्टी से हम लोग सिंगल सिलेक्शन वाला काम यहाँ कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसके बाद। और रेडियो बटन्स में भी इफ यू सी सेम मेथड्स आर यूज्ड, is selected, is enabled, set enabled, right? Before moving further, let's just see how this thing works. पहले मैं रेडियो बटन और चेक बॉक्स में सिंगल सिलेक्शन वाला मैं दिखाता हूँ, डबल सिलेक्शन वो कैसे करनी है। ओके, लेट्स पुट टू रेडियो बटन्स ओवर हियर। मैं एक रेडियो बटन यहाँ लगा रहा हूँ, एक उसके नीचे। ऐसे ही मैं इधर इस तरफ एक, दो और तीन चेक बॉक्सेस लगा दिए, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था
लेट्स से कैटेगरी ही है जनरल edit text SC edit text BC, ठीक है। और यहाँ पे edit text लेट्स से AC नॉन AC, ठीक है। मान लो मेरे पास ये है। अब इसमें इन सब में मल्टीपल सिलेक्शंस होती हैं, मतलब आप रन टाइम पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट इसमें भी मल्टीपल होती है, हमें इसको सिंगल सिलेक्शन लगाना पड़ता है। लगाते कैसे हैं कि आपको एक बटन ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। ये बटन ग्रुप कंट्रोल है, क्लिक करो, ब्रिंग इट हियर एंड लीव इट एनीवेयर, कहीं पे भी छोड़ दो उसको। बटन ग्रुप यहाँ पे आपको कहीं पे भी दिखेगा नहीं, बट आप यहाँ देखोगे नेविगेटर विंडो में आपको यहाँ बटन ग्रुप 1 नाम से ये बटन ग्रुप दिख जाएगा। This button group has been added, although it is not visible anywhere on the screen. Now what we need to do is पहले फर्स्ट रेडियो बटन पे क्लिक किया, इसके पास एक बटन ग्रुप प्रॉपर्टी है, यहाँ से जाके ये नाम सेलेक्ट कर दिया बटन ग्रुप 1। ये कौन सा नाम है? जो इसका नाम है, सेम नेम विल बी देयर। सेलेक्ट दिस, गो टू सेकंड रेडियो बटन्स, अगेन गो टू बटन ग्रुप प्रॉपर्टी, यहाँ से भी ये सेलेक्ट कर लिया। अब the moment you select, you can see there's a line, yellow kind of line you can see in between these two radio buttons. अब इसका मतलब है कि ये दोनों रेडियो बटन जो हैं इनमें बटन ग्रुप प्रॉपर्टी लग गई है। दैट मीन्स रन टाइम पे you can select only one value out of these two, right? ये सेम चीज we can do it in check boxes also, ऑप्शन यहाँ पे भी है। इसमें भी देखो आपके पास बटन ग्रुप प्रॉपर्टी है, आप लगा सकते हो इन केस यू वांट टू, बट वैसे चेक बॉक्सेस में मल्टीपल सिलेक्शन हो जाती है, सिंगल सिलेक्शन नहीं होती, राइट? यही तो डिफरेंस है इन दोनों में। तो हम लोग यहाँ पे इनको हमने पेयरिंग कर दी। लेट्स सी दिस, एक बार फाइल रन करके वहाँ देखते हैं सिलेक्शन चल रही है कैसे चल रही है। Just compiling first. After compilation, the file will run. Then you can see the things on the screen. Here it is. See, ये select किया, नीचे वाला करेंगे तो ऊपर वाला हट गया, ऊपर वाला ये सिंगल सिलेक्शन, एक ही सिलेक्ट हो सकता है। Why? Because we have added button groups. यहाँ पे मल्टीपल है, आप तीनों सेलेक्ट कर लो, ये कोई एक सेलेक्ट कर, ठीक है। ये मल्टीपल सिलेक्शन है। यहाँ पे भी अगर आपको बटन ग्रुप लगाना है लगा सकते हो, उससे यहाँ पे भी सिंगल सिलेक्शन हो सकता है। वी कैन ऐड, राइट? अब हम एक काम करते हैं, मैं एक छोटा सा आपको एप्लीकेशन बना के दिखाता हूँ। To open this form, this is also one way. मैंने यहाँ किया न्यू जे फ्रेम फॉर्म, राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट नेम, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। क्लिक ऑन finish to start. I don't have changed the name, right? I haven't changed the name. You can change it later on. So let's take up a new thing. I'll put a radio button here, another radio button here, right? I'll put a button group here, और फर्स्ट रेडियो बटन को हम लिख लेते हैं AC, और
चेक इन बटन ग्रुप को लेते हैं नॉन एसी। ठीक है, एक टेक्स्ट फील्ड लगाते हैं जहाँ पे हम लिखेंगे where is the text field। टेक्स्ट एरिया दे right। So I have taken one text area where user can enter fare, right। I'm taking one more button so that I can print a value over here, and I'll put a button also।